Today students, we are going to do very important chapter of our plus one accountancy, that is the accounting equation. What is the accounting equation? Accounting equation is the relationship. It is a mathematical expression or the relationship between three basic terms, that is assets, capital and liability. So what is the accounting equation? Accounting equation is the equation that shows the relationship between assets, capital and liabilities. That means all the assets of the business enterprise must be equal to the sum of capital and liabilities of that business enterprise. Now we will see the meaning of all these three basic terms. What is the meaning? Let's see the meaning of the assets. What is the assets? Assets, you know the students that assets are all that resources जो कि बिजनेस में यूज किए जा रहे हैं ताकि बिजनेस का जो रनिंग ऑपरेशन है वो चलता रहे और बिजनेस को प्रॉफिट हो. अब व्हाट आर द एसेट्स? एसेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस, जो कि बिजनेस के अपने हैं और विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट. इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है इनको ताकि बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट मिले. अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कैश, बैंक, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग एंड सो मेनी. देयर आर नंबर ऑफ एसेट्स इन द business enterprise. Now the students, next term is the capital. What is the capital? It's very easy. Capital is the amount that is introduced by the owner. जो पैसा ओनर ने बिजनेस एंटरप्राइज में लगाया है. अब स्टूडेंट्स ये कैश की फॉर्म में भी हो सकता है और इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ द एनी assets like building, stock, raw material, anything. It can be in the form of cash as well as asset. Now the students, the third term is the liability. What is the liability? जो पैसा एंटरप्राइज का अपना नहीं है, जो कि आउटसाइडर से बिलोंग करता है, जो बिजनेस एंटरप्राइज ने आउटसाइडर्स को पे ऑफ करना है, that is the liability. See here, amount which the enterprise owes means जो आउटसाइडर्स को देना है, that is the liability. For example, creditors, bank loan, outstanding expenses, and there are number of the liabilities. Students, today we are focusing on the accounting equations. So here are number of the assets and the number of liabilities. So briefly, I have written these number of assets or liabilities in my description box. You can see from there. Dear students, accounting equations को practicals को करने से पहले हम कुछ points को पढ़ते हैं. इन points को आप पहले से clear करो ताकि आप practical को easily कर सको. Now what are the few points that I have written here? One is that every business transactions will have at least two effects. जितनी भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में हो रही हैं, सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का कम से कम दो इफेक्ट होंगे ही होंगे. दो भी हो सकते हैं कई ट्रांजेक्शन्स के, मोर देन टू भी हो सकते हैं, बट एट लीस्ट टू इफेक्ट शुड बी देयर ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस. नाउ द सेकेंड वन इज आफ्टर इफेक्ट ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन, टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशंस should be equal. You see students, after effect, हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अफेक्ट के बाद जो सम है, जो न्यू टोटल आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो हमेशा इक्वल होगा. बोथ साइड्स विल रिमेन इक्वल. थर्ड वन इज दैट कैपिटल इज रिड्यूस. Capital will reduce with amount of loss, expenses and drawings. जो बिजनेस में कैपिटल लगाई है वो कैपिटल रिड्यूस होगी लॉस के कारण, एक्सपेंस और ड्रॉइंग्स के कारण, और यही कैपिटल
इंक्रीज होगी किसके कारण, प्रॉफिट, इनकम, गेन, या फिर एडिशनल कैपिटल लगाई गई है बिजनेस एंटरप्राइज में, तो उसके कारण जो है द कैपिटल अमाउंट विल इंक्रीज. तो you students please note these few points so that you will be able to understand the practical portion of this accounting equation. Dear students, accounting equation से related हमने कुछ points को अभी study किया. उन्हीं points के base पर हमें पूरा accounting equations के practical को solve करना है. अब उन accounting equations को solve करने के लिए एक proper format होता है अकाउंटिंग इक्वेशंस का. तो उस फॉर्मेट्स पर जाने से पहले आई जस्ट वांट टू क्लियर द फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू द अफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस, कि ट्रांजैक्शंस के अफेक्ट को आपने कैसे शो करना है. आई हैव रिटन सम ट्रांजैक्शंस हियर. द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज दिस, दैट ए कमेंसेस हिज बिजनेस विद कैपिटल ₹20,000. ए इज द ओनर और उसने बिजनेस को स्टार्ट किया 20,000 कैपिटल के साथ. अब इस ट्रांजैक्शन का क्या अफेक्ट होगा, एक तो बिजनेस में कैश आया क्योंकि उसने बिजनेस को कैश से स्टार्ट किया है. सेकेंड, वो कैश किस फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल क्योंकि ये ऑनर से रिलेटेड है. तो टू थिंग्स, टू टर्म्स यू विल सी हियर. वन इज दैट कैश, your cash will come in the business 20,000 as well as the capital, it is in the form of the capital. Capital will come here of rupees 20,000. Now the student, next transaction is that purchased goods for ₹1,000 in the cash. Purchased goods means all these transactions are happening in the business enterprise. तो बिजनेस एंटरप्राइज ने गुड्स को परचेज किया है और किस में परचेज किया है, कैश में. गुड्स को खरीदा है, परचेज किया है, तो टू थिंग्स विल बी देयर, कैश गया और गुड्स आया. गुड्स को आप क्या लिखेंगे, स्टॉक. द स्टॉक विल इंक्रीज विद द ₹1,000 and cash will decrease with the same amount. Now the students, third transaction is that business enterprise purchased furniture for ₹2,000 in cash. बिजनेस ने फर्नीचर को परचेज किया तो सिंपली फर्नीचर आया और कैश गया. तो two things will be here. One is what will increase, furniture, that is the asset, will increase with 2,000 as well as other asset, that is the cash, will decrease with ₹2,000. So this is the effect of third transaction. Fourth transaction is here, that purchased goods on credit. कि बिजनेस एंटरप्राइज ने गुड्स को परचेज तो किया लेकिन उसके पैसे नहीं दिए, क्रेडिट पर परचेज किया. तो क्या होगा, यू विल सी हियर स्टूडेंट्स, परचेज गुड्स मींस गुड्स तो आया ही है, तो दैट मींस स्टॉक इंक्रीजेस विद ₹1,500. स्टॉक आया, अब क्या चीज गई, कैश तो नहीं गया, लेकिन बिजनेस एंटरप्राइज की लायबिलिटी अराइज हो गई. तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई. कौन सी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, करंट लायबिलिटी, दैट मींस बिजनेस की क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गई. तो वो क्रेडिटर्स कितने के इंक्रीज हुए, वो द सेम अमाउंट. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज दैट बिजनेस एंटरप्राइज पेड सम एक्सपेंसेस, पेड ₹1,000 फॉर रेंट एंड सैलरी ₹13,000. कि कैश डिक्रीज हुआ कितने से, 1,000 प्लस 13,000, दैट मीन्स टोटल 14,000 कैश तो गया. किस कारण से, एक्सपेंसेस को पे ऑफ किया. नाउ द सेकेंड इफेक्ट इज, आपने स्टूडेंट्स मेन पॉइंट्स में मैंने आपको लास्ट का पॉइंट बताया था कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उससे कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी. तो सेकेंड इफेक्ट क्या हुआ,
कि आपकी कैपिटल क्या होगी, इससे रिड्यूस होगी. कैपिटल विल डिक्रीज with the amount of 14,000. So one effect is here and one effect is here. Now the sixth transaction, that commission received rupees 5,000. So commission received is a income for the business enterprise. तो अगर इनकम है, इनकम आई कैश की फॉर्म में, रिसीव्ड मीन्स कैश की फॉर्म में, कैश आया 5,000 रुपए का और कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी. दैट इज द लास्ट पॉइंट कि कैपिटल विल इंक्रीज विद द इनकम. सो सी हियर व्हाट विल हैपन, कैश विल इंक्रीज and capital will also increase with rupees 5,000. Now the last point is, students, that A is the owner, he withdraws rupees 2,000 for his personal use. ओनर ने बिजनेस में से 2,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले. तो दैट मीन्स द ड्रॉइंग को विड्रॉ किया. व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, 2,000 निकाले हैं, दैट इज ऑफ कैश. सो कैश इज डिक्रीजेस विद रुपीज 2,000 and the capital will also decrease. So the capital will decrease with rupees 2,000. So students, you see I have written few easy transactions here ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए. और अगर आप यहाँ देखेंगे तो सभी ट्रांजेक्शन्स के डबल इफेक्ट हैं, टू इफेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, so we have studied different business transactions as well as their effects. In next videos we will study the more business transactions and their effects and the practical portion of the accounting equation. So, dear students, so keep watching, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Thank you.